Hello students, in this section we will continue our topic on enzymes. In the previous video we have seen what are enzymes, who discovered them, that is some important discoveries related to enzymes. Then we had also seen about different factors which were affecting the rate of reaction and the activity of the enzymes. In today's class we will see how these enzymes work. That is, we will see the mode of action of enzyme. एंजाइम्स अपना काम करने के लिए किसी भी नॉर्मल रिएक्शन में दो इम्पॉर्टेंट चेंज करते हैं. सबसे पहली बात, वो सबस्ट्रेट के साथ जुड़कर एक टेम्पररी स्ट्रक्चर बनाते हैं विच इज़ नोन एज एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग जो वो करते हैं, हमारी बॉडी में होने वाली रिएक्शन में जो एक्टिवेशन एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी मीन्स द एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू प्रोसीड, उस एक्टिवेशन एनर्जी को वो रिड्यूस कर देते हैं. तो इन दो रिएक्शन के कारण नॉर्मल कंडीशन पे हमारी बॉडी में सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो जाती हैं. तो द टू मेन इम्पॉर्टेंट थिंग्स व्हिच आर डन बाय द एंजाइम्स इज एंजाइम react with the substrate and form enzyme substrate complex. And the second important thing is they decrease the activation energy. These are the two important changes which are made by enzymes. सबसे पहला change, formation of enzyme substrate complex, and the second one is decrease the activation of energy. Now we will study both these one by one. First, that is formation of ESC, enzyme substrate complex. For this it was postulated by Michaelis and Mendel. Michaelis and Mendel. He explained that mechanism of enzyme action can be seen by the formation of enzyme substrate complex. This enzyme substrate complex structure is unstable. ये एक स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं होती है, टेम्पररी स्ट्रक्चर होती है जो बनती है और बाद में वापस से इट डिसोसिएट टू एंड प्रोडक्ट and release the enzyme free. इसको हम यह समझ सकते हैं कि हमारा जो भी सबस्ट्रेट है जिससे प्रोडक्ट बनना है वो इस एंजाइम के साथ रिएक्ट करके एक टेम्पररी स्ट्रक्चर बनाता है. सपोज दिस इज आवर रिएक्टेंट, दिस इज एंजाइम, दिस इज रिएक्टेंट. They form a temporary structure which is known as enzyme substrate complex. ये जो enzyme substrate complex होता है ये temporary structure होता है और बाद में dissociate होकर के again enzyme को free कर देता है और ये जो reactant है, जो substrate है, वो हमारा product में convert हो जाता है. So this postulate was given by Michaelis and Mendel, and according to this the mechanism of action is initiated by the formation of enzyme substrate complex which dissociate to form end product and set the enzyme free. The enzymes here are known as temporary reactants. जो एंजाइम यहाँ पर काम में आते हैं they are known as temporary temporary enzymes or temporary reactant.
because they are not utilized during the completion of the reaction and act like a substrate only. Substrate is utilized during the course of reaction. यहाँ पर जो substrate है उससे पूरा product बन जाता है. Substrate is completely utilized, but enzymes are set as free enzymes, so they are temporary. One scientist named Kalin said that when a substrate and enzyme come together in the reaction, they form a complex which is known as enzyme substrate complex, and it is now known that the rate of each reaction is governed by the law of mass action. By the law of mass action, whether it is catalyzed or not. एक साइंटिस्ट थे कैलिन. कैलिन ने ये बताया कि कोई भी रिएक्शन हो रही है तो दैट इज गवर्न बाय द लॉ ऑफ मास एक्शन. मास ऑफ द रिएक्टेंट एंड मास ऑफ द प्रोडक्ट इज सेम, चाहे उस रिएक्शन में एंजाइम का रोल हो या नहीं. लेकिन अकॉर्डिंग टू बायोकेमिस्ट्री किसी भी रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए एंजाइम की ज़रूरत होती है, और ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है विच वॉज पोस्टुलेटेड बाय Michaelis and Mendel. This mechanism of enzyme substrate complex can be explained on behalf of two theories, that is lock and key theory and induced fit theory. ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, इसको हम दो थ्योरी के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर सकते हैं. फर्स्ट इज लॉक एंड की थ्योरी एंड द सेकेंड वन इज इंड्यूस्ड फिट थ्योरी. नाउ टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स हमारे पास दो मैकेनिज्म आते हैं. द फर्स्ट इज लॉक एंड की थ्योरी एंड द सेकेंड वन इज इंड्यूस्ड फिट थ्योरी. लॉक एंड की थ्योरी, जिस तरह से एक लॉक के लिए एक पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड की होती है और उसी की से ही हम लॉक को खोल सकते हैं, इसी तरह से एक सबस्ट्रेट के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है और वो एंजाइम उससे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है, एंड दैट पर्टिकुलर एंजाइम एक्ट ऑन द स्पेशल सबस्ट्रेट ओनली. जब हम किसी भी की को लॉक में लगाते हैं, एक बार वह इसके प्रॉपर जो भी चैनल होते हैं उसमें ये लॉक फिट हो जाता है, और उसके बाद जब हम उसको रिवर्स टर्न करते हैं तो हमारा जो लॉक है वो ओपन हो जाता है. इस लॉक को खोलने के लिए हमें केवल यही की चाहिए. तो उसी तरह से हेयर द की इज एक्टिंग लाइक एन एंजाइम, द की इज बिहेविंग एज एंजाइम एंड द लॉक इज बिहेविंग एज सबस्ट्रेट. इस सबस्ट्रेट की एंड प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें एक स्पेसिफिक एंजाइम की ज़रूरत पड़ेगी, और जब ये सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ कंबाइंड होगा तो एक टेम्पररी कंडीशन हमारे पास आती है, एंड दिस इज नोन एज एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. इसे हम बोलते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. दिस सिचुएशन इज टेम्पररी. लॉक को खोलने के लिए एक टेम्पररी सिचुएशन हमारे पास है. इन द सेम वे दिस इज ऑल्सो टेम्पररी. फिर उसके बाद जब हम इस की को पूरा रोटेट करते हैं तो लॉक अलग हो जाता है, खुल जाता है, और की को हम बाहर निकाल सकते हैं. इन द सेम वे यहाँ पर ये एंजाइम एज इट इज रहता है in the form of key, and here the product is obtained. प्रोडक्ट के फॉर्म में हमारा लॉक खुल गया. इन द सेम वे की अलग हो गई और लॉक खुल जाता है तो प्रोडक्ट हमें मिल जाता है और एंजाइम पूरी रिएक्शन में एज इट इज रहता है. दिस थ्योरी वॉज postulated by Emil Fischer, and he concluded that for any reaction to be happened, then a particular substrate, then particular enzyme is needed for that specific substrate, and the enzyme which is having the active site according to that substrate results in the formation of enzyme substrate complex, which further results in formation of product and release of enzyme. This is known as lock and key theory.
Now the second theory is induced fit theory. This theory was postulated by Koshland. कोशलैंड जो थे उन्होंने हमें सेकेंड थ्योरी दी फॉर द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, एंड ही टोल्ड दैट दीज एक्टिव साइट्स विच आर फाउंड इन द एंजाइम्स आर नॉट रिजिड, ये फिक्स नहीं होते हैं, और जब भी कोई सबस्ट्रेट इसके पास आता है तो इनमें कन्फर्मेशनल चेंजेस हो जाते हैं, और उन कन्फर्मेशनल चेंजेस के कारण वो एंजाइम उस सबस्ट्रेट के साथ में जुड़ करके एक टेम्पररी स्ट्रक्चर दैट इज एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है. तो अकॉर्डिंग टू द इंड्यूस्ड फिट थ्योरी विच वाज पोस्टुलेटेड बाय कोशलैंड, द एक्टिव साइट्स आर नॉट रिजिड. ही कंक्लूडेड दैट द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम आर नॉट रिजिड. ये बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, रिजिड नहीं होते हैं, और दे कैन बी चेंज्ड. These active sites can be changed whenever substrate come in contact with them, and because of this only it is known as induced fit theory. Means they can be fit according to the substrate. या सिंपल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम इज नॉट फिक्स्ड एंड इट इज फ्लेक्सिबल एज कंपेयर टू लॉकेट की थ्योरी. लॉकेट की थ्योरी में हमने ये देखा था कि एक लॉक के लिए एक स्पेशलाइज्ड की होती है और वो केवल उसी से ही खुल सकते हैं, लेकिन इंड्यूस्ड फिट थ्योरी में की के जो रिजिडनेस है, जो फिक्सेबिलिटी है, वो नहीं होती है. इसकी जगह एंजाइम फ्लेक्सिबल होते हैं, एंड व्हेनेवर दे कम इन कॉन्टैक्ट विद द सबस्ट्रेट देन द एक्टिव साइट गेट्स कन्फर्मेशनल चेंजेस. उसकी कॉन्फिगरेशनल चेंज हो जाता है या कन्फर्मेशनल चेंजेस हो जाते हैं, एंड इन चेंजेस के कारण से कोई भी सबस्ट्रेट जो होता है वो एंजाइम्स की एक्टिव साइट के साथ बॉन्ड बना करके और टेम्पररी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है. दिस थ्योरी इज नोन एज इंड्यूस्ड फिट थ्योरी. नाउ द सेकेंड स्टेप ऑफ एंजाइम. हमने एंजाइम के दो इम्पॉर्टेंट स्टेप देखे थे. पहला फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. कॉम्प्लेक्स के बनने के लिए हमने दो थ्योरी देखी, दैट वर लॉकेट की थ्योरी एंड इंड्यूस्ड फिट थ्योरी. एंजाइम का दूसरा इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है एक्टिवेशन एनर्जी को कम करना. व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी? किसी भी ऑर्गेनिज्म में जब मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है या रिएक्शंस होती है, तो उनको प्रोसीड करने के लिए, इनिशिएट करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट होता है दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी. एंजाइम हमारी बॉडी में दूसरा इम्पॉर्टेंट वर्क करते हैं उस एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस करके. फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम एक ग्राफ बनाएं पोटेंशियल ऑफ एंजाइम एंड द रेट ऑफ रिएक्शन में, तो किसी भी सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनने के लिए बिना एंजाइम की एब्सेंस में इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट हमको होती है. लेकिन अगर वही रिएक्शन हम किसी भी एंजाइम की प्रेजेंस में करवाएंगे तो ये एनर्जी रिड्यूस होकर के और यहीं तक ही आ जाती है, और ये सबस्ट्रेट इस एंजाइम की प्रेजेंस में लो एनर्जी रिक्वायरमेंट, लो एक्टिवेशन एनर्जी के साथ में ही हमें प्रोडक्ट दे देता है. In other words, we can say that in chemical reactions, energy is required. Whenever any reaction occurs, then we need energy. Energy is needed. But to initiate these reactions, the required energy, which is needed for the initiation of the reaction, is known as activation energy, and this activation energy is lowered down with the help of enzyme. जो एक्टिवेशन एनर्जी किसी भी रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए चाहिए, दिस एक्टिवेशन एनर्जी इज लोअर्ड डाउन फ्रॉम ब्लू टू रेड. ग्राफ हमारा कितना नीचे आ गया, ये ब्लू है बिना एंजाइम के, एंड दिस वन इज रेड इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स. तो एंजाइम प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल बाय लोअरिंग डाउन द रिक्वायरमेंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल. हेंस in the presence of enzyme, the reactant
liberate in the product with the low activation energy. These are the two most important functions which are performed by enzyme. First is formation of ESC, that is enzyme substrate complex, and second is by reducing the activation energy. जब एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट थोड़ी होगी तो वही रिएक्शन लो एनर्जी रिक्वायरमेंट पर भी हो पाएगी. एंड दिस इज हाउ द एंजाइम वर्क्स.